गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम लोग मुद्रास्फीति को आगे बढ़ाते हुए लागत प्रेरित अथवा लागत जन्य मुद्रास्फीति की चर्चा करेंगे। जैसे हम सब जानते हैं कि मुद्रास्फीति एक मौद्रिक घटना होती है और यह समग्र मांग और समग्र पूर्ति के असंतुलन से ही होती है। एक अर्थव्यवस्था में जब एक तरफ वस्तुओं की अधिक मांग उत्पन्न होने लगती है, अर्थात लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने लगती है और यह अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्राओं के परिणाम स्वरूप होता है, तो इसे हम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं, जिसे हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में चर्चा किया। उसी तरह से मांग का विपरीत पहलू पूर्ति होती है और पूर्ति में कमी के कारण भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। पूर्ति में कमी लागतों में वृद्धि के कारण होती है और वस्तुओं की लागतों में जब वृद्धि होती है तो पूर्ति घट जाती है। मांग अगर स्थिर होती है या स्थिर रहती है उस वक्त, तो लागतों में वृद्धि कीमतों में वृद्धि लाती है। यदि हम ये मान के चले कि पूर्ति भी स्थिर हो और फिर भी लागतों में वृद्धि हो, तो इस लागतों में उछाल या वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि आती है और इसे लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। So, in the last videos, we have discussed how inflation, being a monetary phenomena, is affected or is created rather in an economy due to the disequilibrium between aggregate demand and aggregate supply. Taking the demand side, when demand of goods and services suddenly increase or gradually increase also, but supply remaining constant, the prices starts increasing. The increase in demand is due to various factors, as we have discussed it in our previous videos of demand pull inflation. But basically, every reason, every cause leads to one single factor, that is, increase in the purchasing power of the people due to one or many reasons. And this is again a resultant of too much money in the market or an overflow of income in the market on a macro basis. Now, all this leads to high inflation in prices or highly inflated demand, which again leads to increase in prices. The flip side of demand is supply. So, whenever there is a disequilibrium in demand or in supply, it leads to inflation. Now, how? When there is a decrease in supply, but demand remains the same, then also prices will increase. Now, this decrease in supply may occur because there is an increase in the cost of production. As we all know, that supply is a function of its cost of production and it has an inverse relationship. When the cost of production increases, supply decreases. So, instantaneously, the prices will increase. In acute conditions, even if we allow this thought theoretically that despite the cost of production increasing, supply remains constant, and in the market, demand also remains constant. Let us just assume. In that case, or even in that case, we can say that prices will increase because the entire increase in the cost of production will get reflected as an increase in the prices of goods and services, and thereby ultimately leading to inflationary trends. And this is known as cost push inflation. Because what is happening here is that the increase in cost is pushing up the prices of the goods and services and ultimately leading to inflationary tendencies. इसे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति इसलिए कहा जाता है क्योंकि लागतों से ही प्रेरित होकर मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही है। तो आइए इस बारे में आगे चर्चा करते हैं हम लोग। Inflation can be caused because the price of certain inputs increase.
Now, what are the inputs of production? Labor, raw materials, capital. So, if any of the raw materials price increases, cost of production will increase. Similarly, if the price of labor, that is wage rates, increase, or the price of capital increases, or the rate of interest for investment increases, so in any of these cases, the cost of production would increase. And what will it result to? It would result to a decrease in the total supply of goods. If demand remains constant, the increase in the cost and supplemented by the decrease in the supply will lead to a increase in price level. This is how cost push inflation is created or it sets in the economy. So cost push inflation is when supply cost rises or supply level falls. And either of them happens or both of them happens together. So we have to take theoretically both the conditions. One is either supply decreases or cost decreases, right? Or secondly, both of them alter. So supply decreases and cost increases. Or a third condition where cost increases but supply remains constant. In any of these cases, price of the goods and services will increase and this leads to inflation. लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उस वक्त उत्पन्न होती है जब उत्पादन की साधनों की कीमत बढ़ने लगती है। उत्पादनों की साधन किसे कहते हैं? जैसे मजदूर, भूमि, रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल जिसे हम कहते हैं, पूंजी, ये सभी उत्पादन के लिए साधन हैं। तकनीक भी है, बहुत सारे साधन होते हैं, हमने 2-4 का नाम दिया है यहाँ पे। अगर कोई भी उत्पादन के साधन की कीमत बढ़ जाए या एक से अधिक साधनों की कीमत बढ़ जाए, तो इस कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पादन की कुल लागत बढ़ जाती है और इसी से कीमत भी बढ़ने लगती है। कई बार यह कीमतों में वृद्धि, साधन की कीमतों में वृद्धि लागत को बढ़ाती है और इससे उत्पादन निरुत्साहित होकर गिरने लगती है। तो लागतों में वृद्धि कई बार पूर्ति में कमी लाती है। ज़रूरी नहीं है कि कमी लाए, लेकिन कई बार ये कमी लाती है। ये भी एक दशा है। तो हम दोनों दशाओं को साथ लेके चलेंगे। कौन सी दो दशा? पहला कि पूर्ति स्थिर है, बस लागतों में वृद्धि है, ठीक है। और दूसरा क्या दशा है कि पूर्ति भी गिर रही है क्योंकि लागतों में वृद्धि है। इन दोनों दशाओं में रिजल्ट यानी परिणाम एक ही है और वो परिणाम क्या है कि कीमतें बढ़ने लगती है और मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, ठीक है। इसी को कहा जाता है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति अथवा लागत जन्य मुद्रास्फीति, क्योंकि मुद्रास्फीति इस अवस्था में जो मुद्रास्फीति उत्पन्न हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि लागतों में वृद्धि है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन usually occurs when demand of the goods and services remains inelastic or relatively inelastic. So when elasticity of the demand is almost equal to 0 or much lesser than 1, this kind of inflation may arise. लागत जन्य मुद्रास्फीति तब उत्पन्न होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग की लोच 1 से कम रहेगी और 0 के लगभग बराबर होगी। यानी जितनी वो कम होगी उतना ही ये इस तरह की स्थिति होने की संभावनाएं होती हैं। अगर मान लेते हैं कि लोग वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर अपनी खरीदारी को कम कर देते हैं, तो कुछ समय बाद इस तरह की मुद्रास्फीति या कीमतों में उछाल नहीं रहती, वो भी गिरने लगती है। तो मुद्रास्फीति उत्पन्न उस समय नहीं होगा।
If the prices, when it comes up, the demand falls because the goods are relatively elastic. If such a case happens, it will not be a circumstance of inflation. It will be just a short lived प्राइस फ्लक्चुएशन। यदि मांग लोचपूर्ण हो तो कीमतों में वृद्धि के साथ साथ ये संभावनाएं होती हैं कि लोग या उपभोक्ता जो है वो दूसरे सब्स्टिट्यूट्स यानी स्थानापन्न वस्तुओं पर अपना क्रय करेंगे। अपना ध्यान जो है वो स्थानापन्न वस्तुओं या सब्स्टिट्यूट्स पर वो शिफ्ट हो जाएंगे और पर्टिकुलर वस्तु की जो प्राइस राइज हो रही है उसकी डिमांड फॉल करने लगी। ओके, और फिर एक समय आएगा जब डिमांड एंड सप्लाई उसकी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो ये एक टेम्पररी बस आप कह सकते हैं प्राइस फ्लक्चुएशन या कीमतों में उतार चढ़ाव रहेगी, लेकिन इसमें मुद्रास्फीति की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मुद्रास्फीति कब उत्पन्न होती है? जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग बेलोचदार होती है, when the demand is inelastic। क्योंकि ऐसी स्थिति में कीमत कितनी भी बढ़ जाए लोग उसकी खरीदारी कम नहीं करते हैं, वो दूसरों चीज़ों पर अपना जो खर्च है, व्यय है, उसको घटा देंगे, लेकिन वो अपनी खरीदारी को कम नहीं करेंगे। जैसे पेट्रोलियम प्राइस अगर बढ़ती है तो लोग सैर सपाटा भले ही बंद कर दें, लेकिन उनकी जो रोज़ की जो ज़िंदगी है, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, काम करना, बाहर निकलना अपने काम के लिए, जो उनकी रोज़ की ज़िंदगी है वो थमती नहीं है और उस पर किया गया पेट्रोल खर्च भी नहीं घटेगा, वो उतना ही रहेगा, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। तो प्राइस कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए पेट्रोल की, मांग में कमी नहीं आती है। जब ये स्थिति है तभी जाके ये कीमतों में वृद्धि जो है वो स्थिर रहती है और निरंतर रहती है और यही इन्फ्लेशन होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इन्फ्लेशन। और यही स्थिति में जब मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं लागतजन्य मुद्रास्फीति। हो सकता है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाए जिसके कारण पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बावजूद डिमांड यानी मांग स्थिर रहेगी, सप्लाई घट जाएगी और कीमतें बढ़ने लगेंगी। मुद्रास्फीति लागतों में वृद्धि होने की दशा में ही पैदा होती है, खास करके लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। तो लागतों में जब वृद्धि होती है तो समस्त पूर्ति वक्र, जिसको हम एएस कर्व जो कि इस चित्र में दिखाया गया है, वो बाईं ओर खिसक जाएगी, जैसे AS1 AS2 तक खिसक जाएगी और इससे कीमत स्तर में वृद्धि होती है। जब मजदूरी की दर अथवा कच्चे माल की कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादन लागत बढ़ जाएगी और उत्पादक लागतों में इस वृद्धि को कीमतों में बढ़ाकर उपभोक्ता से वसूलता है। वो अपने पॉकेट से नहीं देता है, वो अल्टीमेटली कंज्यूमर से ही उसकी वसूली कर लेता है। सो इट इज़ वेरी एविडेंट कि किसी कारणवश अगर उत्पादन लागत बढ़ जाए तो कीमतों में वृद्धि हो जाती है, अर्थात मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है और समस्त मांग वस्तुओं की पूर्ति की अपेक्षा अधिक नहीं होती है, बल्कि पूर्ति समस्त मांग की अपेक्षा कम होने लगती है। इसे हम निम्न चित्र द्वारा समझा सकते हैं। निम्न चित्र में आप देखेंगे कि एक्स अक्ष पर हम लोगों ने वास्तविक जीडीपी लिया है और वाई अक्ष पर सामान्य कीमत स्तर। So in this picture we have, in the diagram rather, we have taken real GDP on the x-axis and general price level on the y-axis. AD is the aggregate demand curve and AS are the aggregate supply curve. AD हमारा समग्र मांग वक्र है और AS है हमारा समग्र पूर्ति के वक्र। Demand remains constant. It does not change much.
It is only that the supply changes. If there is any increase in the cost of production, it leads to decrease in the supply, which is shown by a shift in the supply curve towards the left. Initially, with the interaction of demand and supply curves, price level was at GPL1. But when supply shifts to the left, which is a resultant of decrease in supply, the price rises to GPL2. जब मांग AD पर होती है और पूर्ति AS पर है, तो सामान्य कीमत स्तर GPL1 होती है और वास्तविक GDP Y1 पर है। परंतु जैसे जैसे पूर्ति घटती जाती है, AS2 पर खिसक जाती है, तो वास्तविक GDP भी घट जाती है क्योंकि आउटपुट घट गया है, Y2 पर आ जाती है और कीमतों में वृद्धि आती है, GPL2 में कीमत चली जाती है। ये कई वजह से हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मजदूरी या मजदूरी दर बढ़ जा गई है। देयर मे बी अ राइज इन द लेबर कॉस्ट और लेबर प्राइसेस। हो सकता है कि कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो, मे बी देयर इज अ राइज इन द रॉ मटेरियल प्राइसेस, या टैक्सेशन में वृद्धि हो गई हो, सरकार के करों के दरों में वृद्धि हो गई है। जो भी लागतों को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है और लागतों में वृद्धि लाती है, कोई भी ऐसा निर्धारक तत्व, कोई भी ऐसा तत्व जो लागतों में वृद्धि लाती है, उनमें अगर चेंज हो तो लागतें बढ़ जाती हैं। और लागतों में जो भी परिवर्तन होता है, दैट इज वट एवर द राइज इन द कॉस्ट भी, ये उत्पादक जो है अपने से पूरा नहीं करता है। वो उत्पादक अल्टीमेटली कंज्यूमर से ही वसूलता है और इसीलिए कीमतें बढ़ जाती हैं। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण ही कीमत स्तर बढ़ती है, परंतु राष्ट्रीय उत्पादन घटता है। आप देखेंगे कि GPL1 से GPL2 हो जा रही है, लेकिन जो नेशनल आउटपुट लेवल है, वास्तविक GDP है, तो उत्पादन का स्तर घट के Y1 से Y2 हो गई है। इसलिए इसे स्थैतिक मुद्रास्फीति अथवा मंदी सहित मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। So in acute conditions, it is also referred to as stagflation और inflationary recession. क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में कीमतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन उत्पादन घटता है और उत्पादन के घटने के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ती है। इसी प्रकार लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कई तरह से आप कह सकते हैं अवमूल्यन के कारण भी विदेशों से आयात किए जाने वाले पूंजीगत पदार्थ तथा कच्चा माल की कीमतों में भारी वृद्धि, रेलवे के भाड़ों में बढ़ोतरी, उत्पादन कर तथा बिक्री कर में वृद्धि इसके कारण उत्पन्न हो सकती है। Sometimes it may also arise because of tax rates being increased or the devaluation of currency or increase in import prices. These may be some of the reasons. लेकिन लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का प्रभाव यहाँ तक ही समाप्त नहीं होता है। प्रायः लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पादन में गिरावट को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक मुद्रा पूर्ति को बढ़ा देती है। So to stop the impacts of cost push inflation, the central bank of the economy starts increasing the money supply ताकि समस्त मांग को बढ़ाया जा सके, so that the aggregate demand can be increased. लेकिन क्योंकि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन को घटने से रोकने के लिए मुद्रा पूर्ति में वृद्धि करके
समस्त मांग को बढ़ाने जाने की कोशिश की जाती है, मुद्रास्फीति और भी बढ़ जाती है, क्योंकि एक तरफ तो सप्लाई घट रहा है, दूसरी तरफ मांग बढ़ रही है, तो मुद्रास्फीति की जो गति है, डिग्री है, वो और भी ऊंची हो जाती है. So we can say that if such a step is taken, that the government tries to increase the money supply by giving more employment, decreasing, because it's a condition where not only the inflation rate is rising, but also rate of unemployment rises, rate of production falls. So a country may dip into a condition of recession. To stop this from happening, the government may resort to an idea of increasing the money supply in the economy. How? Maybe by increasing the number of employabilities or increasing opportunities of income and livelihood. In this case, the demand shoots, aggregate demand simply shoots up. Whereas, on the other hand, when the supply is already low and the demand suddenly shoots up, prices shoot up higher. So there are 100% chances of higher degrees of inflation setting in. Rather than the inflation going down or eliminating inflation, inflation increases many-fold times. So this has to be kept in mind while taking steps for this kind of inflation. So ultimately, we can say that cost push inflation reduces the supply or the total output of the economy, और कितना आउटपुट में कमी आएगी वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितनी वृद्धि हुई है, यानी लागतों में कितनी वृद्धि हो रही है और कौन सी लागतों में वृद्धि हो रही है, कौन से साधन की कीमत में वृद्धि हो रही है. ये डिसाइड करता है कि सप्लाई यानी पूर्ति कितनी कम होगी. अगर पूर्ति बहुत ज़्यादा अचानक से कम होती है तो इसको सप्लाई शॉक्स भी कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज सप्लाई शॉक्स, क्योंकि अचानक से पूर्ति घट जाती है. आई होप आपको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन समझ में आया है. हम लोग इसके कॉजेज़ पर नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे. आप इसको पहले सुनिए, समझिए, and I hope you're taking care of yourself, girls, right? Please study and take care of yourself too. Thank you.